Saturdays and Sundays are fun days. Wednesday and Thursday just slip away working hard, and Mondays are meant for fighting the work-related blues. So what about Tuesday? Don't scratch your head, because we are here to make your Tuesday a tinkling special day. What you have to do is just grab your packet of snack, get cozy with your family and friends, and watch our very popular show, Melody Makers, which is all about worshipping the colossal work and the achievement of Northeast musicians. People, once again, we are here, and today we are going to introduce you a very talented singer who has made a niche for herself from the very tender age of 4. Let's welcome Maushami Saharia. Welcome, Maushami. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर के. So Maushami, you belong to today's era. You are new generation, and you started early from the age of 4. So how did you manage your studies? And people, I have to tell that Maushami has a spectacular, very good career, career in studies also. So what about your studies? How did you manage your musical career and studies? You see, now too I have to say that I'm very happy in my both fields, music and education. Yes, I just balance it. मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार पढ़ाई थोड़ा छोड़ दूँ? I didn't feel big. In fact, it gives me inspiration. मुझे ऐसा लगता है कि if I stop music, I cannot study. And if I stop, पढ़ाई बंद करने से मुझे ऐसा लगेगा कि शायद I won't be able to sing. पता नहीं, it's a mixture of both. And I should spill the beans, okay, all the secret things that you have done your masters in education. Yeah, education and B.Ed also. Yeah, and you are pursuing PhD. PhD, yeah. Well, ये कुछ अलग है. जनरली हम नहीं सुनते हैं. जनरली इस फील्ड में क्या होता है कि आप बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों को टैकल करना. ठीक है, एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि मौशमी, तुमने बहुत सालों से हमारे दूरदर्शन में भी काम किया है, PPC में भी काम किया है, तो कैसा लगता है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो दिल के बहुत ही करीब है? ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. मैंने I did many more programs in दूरदर्शन and PPC, and it's a great honor for me कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया. बहुत सारी म्यूजिकल सीरियल्स में भी मैंने गाना गाया, जैसे गीति मालिका, गीता और गोधुली. many more serials are there and many more news programs are there. So मुझे दोनों बहुत अच्छा लगता है. ऐसा कोई प्रोग्राम जो दिल के बहुत करीब हो? सारे दिल के करीब है. You're greedy about your programs. Okay, और कितने सालों बाद, after how many years or months you are back again to the PPC Northeast studio? Most probably 2-3 years, I think so, because I was not here. तो बहुत सालों के बाद मुझे लगता है. Do you remember the very first program you did in दूरदर्शन or PPC? When I was in 6 years old. Okay. तब से मैंने पहली बार मैंने दूरदर्शन में गाना गाया when I was 6 years old. तब से मैं गा रही हूँ. That's so cool. Okay. And one more thing, you have been a recipient of Best Singer Award, which you have won in the state level and of course in the Northeast level. But which is the award which is very closest to your heart, or which you feel that okay, I always wanted to get this award and now I have this award? So ऐसा कुछ मतलब आप यदि मुझे पूछोगे तो awards, it's like it's a recognition for each and every singer. सबको मतलब हम लोगों ने कितना काम किया, मतलब अवार्ड मिलने से ऐसा लगता है कि हमें वो सहारा गया कि लोग हमें पसंद करते हैं. ठीक है ना. तो when I was in Cotton College, मुझे मिला था बेस्ट सिंगर अवार्ड. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके कौन सा साल में हुआ था? It was in 96-97. हाँ, तो उसके बाद मुझे और एक मिला नवीन सूर्य अवार्ड. उसके बाद मुझे एक नेशनल अवार्ड भी मिला था, विजय श्री अवार्ड. तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले नॉर्थ ईस्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में. One more thing, you have done your own cassettes, videos, SMS videos, but people know you more for your rendering of Dr. Bhupen Hazarika's song, the legendary singer of Assam. And so what do you feel? How did it come up? How did you select it? Because people now know they usually associate you with Bhupen singing. Okay, so tell me about this. See, you have started it's a great turning point in my life, because
I've started my singing career just as you have told कि in the age of 4. But जब से मैंने भूपेंदा का गाना गाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि it gives me a new look to my musical life. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गाना अभी गाना शुरू की because बहुत से लोग अभी भी मौसमी सहारिया का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा जो भूपेंदा के गानों को इतने बखूबी से निभाती है, तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब हम लोग डरते हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका के गाने को गाने से? वो मेरे साथ भी सेम इट वाज लाइक हैपेंड टू मी बिकॉज व्हेन ये जब मुझे कहा गया था कि भूपेंदा का गाना गाना है, मैं तो पहले मैंने बोला था कि मुझे नहीं गाना बिकॉज आई वाज वेरी अफ्रेड बिकॉज भूपेंदा का गाना गाना इट्स लाइक यू नो बहुत टेंशन होता है। आप मुझे अभी गाने दोगे ना तो मुझे बहुत टेंशन होगा कि मैं कैसे गाऊंगी। लेकिन मुझे एक बात ही कहना है कि आई एम जस्ट ब्लेस्ड एंड इट्स अ गोल्डन गिफ्ट ऑफ गॉड कि भूपेंदा ने मुझे मतलब पब्लिकली मुझे एक बहुत अच्छा मुझे कमेंट दी है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें वो प्रतिध्वनि, so it's a great and it's a golden gift of God to me, you know, because Dr. The maestro himself said that you are his echo. That's an achievement in itself. Maybe it's a great day for me. God has given me that gift कि भूपेंदा ने मुझे ऐसा कहा। ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो बहुत दिल के करीब है? भूपेन हजारिका का सॉन्ग ऐसा कौन सा? मुझे भूपेंदा का गाना सभी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज उनके लिरिक्स, उनके एक्सप्रेशन, it's not in India, it's in first let me just move to some performance of yours. Okay, कौन सा गाना है जो अभी पहले? I just want to sing one. It's a very close to my heart. It's a Binod Tamun Nikhati. I'll just sing it for. Okay, sure. So let's check out this song.
back, people. Did you feel like coming back? Because it was so wonderful. Thank you. और दिल को तो छुआ ही है, लेकिन ऐसा लगा है जैसे हम उन्हीं के मतलब ख्यालात में हम लोग खो गए हैं। बिल्कुल सही। तो भूपेन हजारिका is actually known for singing on social issues, on political issues, For and education even on career erotic. also, yeah. He touched on erotic themes. तो उन गानों को गाने के लिए क्या कोई जरूरी है कि कोई ट्रेंड सिंगर हो? देखिए, उनका गाना गाना मैंने आपको पहले भी बोला है कि इट्स अ वेरी टफ, इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज उनका लिरिक्स, उनका एक्सप्रेशन और जो होता है ना, हम लोग जो बोलते कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है, इट्स वेरी टाइट, उनका डिक्शन तो बहुत ही टफ है। तो उनके लिए डेफिनेटली, वैसे भी हम लोग को मतलब हम लोग जब गाना शुरू करते हैं तो हम लोग को वो चाहिए क्लासिकल बेस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट रियली हेल्प्स द सिंगर। तो मुझे लगता है कि भूपेन दा का गाना गाने से पहले हमें बहुत सुनना पड़ता है। अब वो कैसे गाते, क्या करते, मतलब कैसे, कहाँ पे उन्होंने सांस मतलब ली, बहुत ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा हर टेक्निकलिटी को तो समझना। मैंने एक गाना शायद 15-20 डेज फॉर 1 मंथ मैंने सुना था, उसके बाद ही मैंने गाना जस्ट टू कैप्चर द एक्सप्रेशन। एक गाना मैंने बहुत मतलब एक एल्बम के लिए शायद मुझे 2-3 साल लगे थे प्रिपेयर के लिए। He is also known for composing his own songs. Yeah. What about you? Have you been inspired? No, कहाँ भूपेंद्र और की मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे ये करना वो करना है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कंपोज करना गाना। जैसे कोई एक अच्छा सा माहौल हो, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैं पोएम लिखती हूँ या कोई गाना ऐसा हो। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कंपोजिंग में चली जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई लव, मुझे एक अच्छा बात पूछना लगता है। चाहूंगी, अगर सपोज ऊपर वाला खुद आके जमीन पर ये पूछता है कि मौसमी बताओ तुम्हें क्या 3 चीजें चाहिए, ऐसी कौन सी वो 3 चीज होगी जो तुम्हें लेना ही है या जो अभी नहीं है तुम्हारे पास? देखिए, एक तो मेरा सिंगिंग कैरियर है जो मैं हमेशा चाहूंगी कि हमेशा रहे, कंटिन्यू हमेशा रहे, और उसके साथ मेरा पढ़ाई रहे, और लोगों का प्यार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और क्या बोलूं मैं, बस सिंगिंग है, एजुकेशन है, मेरा फैमिली है। It's very important for me. Now, you have talked about your family, and I have to ask because many people, there is a trend, especially for women. If they get married, they usually leave their career behind, whatever job they're working, they're doing. So you haven't left your musical career till you're continuing. Still, you're continuing. So, and now you're a mother. So, how's this experience, and who's your how much important role your husband has played? See, yeah, he is very supportive actually, I have to say. I just got married in 2008, November to 24th, just 2 years completed, and I just blessed with my twins. I've delivered 2 baby boy, and I'm very happy with them. They're only 5 months old. I'm very happy because my husband is in army. He's an army officer, but still he loves my songs. He used to listen my music, so I'm very happy, and he's very supportive, and that's all. ऐसा अभी कौन सा गाना है जो आप अभी तुम गाना चाहोगे? ऐसा कौन सा गाना है? मेरा एक एल्बम है मौसमी राखा, मैं वही गाना सुनाना चाहूंगी अभी, गागोरी गागोरी। इट्स अ वेरी पॉपुलर नंबर ऑफ yours, and people associate this thing. It's a very
খহি পরে মোর সাদরে মরমতে মধু পিব ধরে তুপে বরহুন দেহতে শুন ফিসল ফিসল পরিম কি জানি সিনা কি ঘাত দিয়া দরনার দিয়া দিয়া দরনার দিয়া দিয়া দরনার দিয়া নাচ দিয়া দিয়া দরনার দিয়া দিয়া দরনার দিয়া দিয়া দরনার দিয়া নাচ দিয়া গাগরি 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 ককালো বাগরি বাগরি পরে উল্লাহ হাগুনা হে বানা হে বয়স বাঢ়ে বাঢ়ে হিয়াতে কিনো লাগি লাগে মই নজনাতে লাজে আহি হাবতিনো ধৰে হাগুনা হে বানা হে বয়স বাঢ়ে বাঢ়ে হিয়াতে কিনো লাগি লাগে মই নজনাতে লাজে আহি হাবতিনো ধৰে কিনি কিন কিন বৰষুণ দেহতে কিনো নাচোন পিছল পিছল পৰিম কি জানি চিনা কি ঘাত দিয়া দৰনাৰ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া নাচ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া নাচ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া দিয়া দৰনাৰ দিয়া নাচ দিয়া वेरी नाइस वेरी नाइस। और अगर मैं बोलना चाहूँ गागोरी गागोरी ये कुछ सागर को लेकर के है, नदी को लेकर के है? ये मतलब नेचर है। नेचर है और गाने में नेचर का होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरी मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब सॉन्ग्स आप यदि आप सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे नेचर जैसे होता है ना, जैसे रिवर हो या लहराई हो, मतलब बहुत ज्यादा वो नेचर्स के बारे में वो होता है। और बच्चों के लिए भी मैंने बहुत सारा गाना गाया, शादी के बारे में भी मैंने बहुत सारे गाने गाए। इट्स नॉट ओनली एसमीज, मतलब इन हिंदी में भी मैंने बहुत सारा गाना गाया। Definitely I would like to hear a Hindi song from you also because मुझे पता चला है कि एक हिंदी सॉन्ग, एक हिंदी पूरा एल्बम ही किया था जी। ओके, तो कैसा था वो रिस्पांस? बिकॉज it's not so nowadays people are doing, even Zubeen has done, but it's rare for an Assamese singer to release a full-fledged Hindi album. Actually, how did it happen? It was an experimental album actually, because being an Assamese singer, मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब पाऊँ कि मुझसे होगा गाना या हिंदी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट लाइक इट्स एन एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग फॉर मी। तो मेरे भैया ही इज एन इंजीनियर बट ही इज इनटू द यू नो दैट प्रोडक्शन, ही हैज इट्स ओन रिच म्यूजिक प्रोडक्शन। आई यूज्ड टू सिंग फॉर हिम। तो भैया के साथ मैंने बात की तो भैया ने कहा चलो ठीक है हम लोग एक एल्बम करते हैं। तो द नेम ऑफ द एल्बम इज तमन्ना एंड द रिस्पॉन्स इज चलो ठीक है, गुड। ओके, तो एक और हिंदी सॉन्ग सुनी लेते हैं इसी एल्बम का। चलिए हाँ सुन लेते हैं। ओके, राह देखो तेरी प्यासी बाहें मेरी, राह देखो तेरी प्यासी बाहें मेरी, ओ तुझको बुला
नाइस। you, thanks a और ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि डिक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ? लेकिन ये बहुत ही- सालों पहले, मतलब शायद 4-5 years, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। तो मुझे अभी लगता है कि शायद मैंने ये थोड़ा सा गलत की, मुझे लगता है, आपको नहीं लगता तो इट्स गुड। नहीं एक्चुअली काबिले तारीफ है, जैसे कहा कि एक्सपेरिमेंटल था, तो ऐसा और कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो करना चाहोगी? हाँ, बहुत सारे हैं। देखिए, कभी भी जो ड्रीम्स होते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। ये मुझे करना है, वो मुझे करना है, बहुत सारे प्लान मैंने अभी किए हुई हैं, देखते क्या होता है। तो ऐसा कोई एल्बम है जिस पे काम करना चाहते हैं, चाहती हो? या एक्चुअली बहुत सारे मतलब गाना, मैं इस टाइप का गाना गाना चाहती हूँ जैसे मेलोडियस हो या अच्छे लिरिक्स हो, जैसे भूपेंद्र का गाना गाने के बाद ऐसा हो जाता है कि आप कोई भी गाना गाने से पहले सोचना पड़ता है कि ये ठीक है कि नहीं, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ यू स्टार्टेड सिंगिंग डॉक्टर भूपेन हजारिका सॉन्ग, लोगों ने तुम्हें बहुत बुलाया भी है बाहर, इवन आउट ऑफ इंडिया भी। हाँ, मैं गई हूँ। शोज करने के हाँ, लिए। जी। तो वहाँ पे ज्यादा लोग क्या मतलब तुमसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं? देखिए, सॉन्ग से या नहीं, मुझे हर तरह के गाने मुझे रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैं अपना जो गाना होता है कोका लोरा गागोरी, वो भी मैं गाई हूँ, और भूपेंद्र का गाना डेफिनेटली, फिर मैंने हिंदी भी गाई हूँ, और इट्स वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि मुझे बस यही है, सब तरह के गाने मुझे वो लोग पसंद करते हैं मेरे से सुनना। ओके और बहुत बात करने का मन कर रहा है, बहुत कुछ जानने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे पता है इतना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में। डेफिनेटली एक आशा है कि शायद कभी और डेफिनेटली तुम्हारे साथ जरूर है, ये बात हम करेंगे और भी। लेकिन विद बेस्ट विशेस आई वुड like to give you all the best wishes and hope that you go on and on in your career. Thank and you. your Thanks musical a lot. career, as you said, Thank that you. you didn't want it to stop. Yeah. Okay, and people, God loves me when I work, but He loves me more when I sing, and we will make you sing, we will make you dance, and we will make you feel the Northeastern distinctive music. And to make you feel, we will come once again next Tuesday with yet another interesting episode of Melody Makers. Till then, you just have to eat, drink, and think melody and music. Thank you, viewers, and thank you, Maushami. Thank you for inviting me. Thank you.